Students, please keep your cameras on, everyone. Hello everyone. Good evening everyone. आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ है ना? Yes, sir. ऐसे हम लोग लास्ट लेक्चर मिले हैं, केमिकल काइनेटिक्स चालू किया था। कुछ नए बच्चे भी दिख रहे हैं आज मुझे। रुद्धि मैम, you were there in the last lecture? Yes, sir. I was there in last lecture. Okay, ma'am. What we have done in the last lecture? Kinetics. Vedant. Yes, sir. कैसा है बेटा? मस्त। ठीक सर। क्या किया था लास्ट टाइम, लास्ट लेक्चर के अंदर? Reactant product type of chemical reactions. Rate of reaction. Rate of reactions. Chemical Chemical equilibrium. equilibrium. And chemical kinetics. ना last part chemical kinetics. हाँ. Chemical equilibrium. नहीं, chemical kinetics the last part. हाँ. Okay, nice. मोनालिका मैम, आपके लास्ट लेक्चर में? Yes, sir. मैम, what is chemical kinetics? आप देख के बोल सकते हैं मैम, बुक है आपके पास, you have the book. What is chemical kinetics, मैम? It is a branch of physical chemistry which deal with the study of rate of reaction, factors affecting rate of reaction and mechanism. Nice. सोनाली मैम, आवाज आ रही है मैम? अनम्यूट करके बोलिए मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। मैम किसी को नहीं आ रही है। Hello, sir. Okay, nice. That was the last part. Please have a look, everyone. Now the next part is chemical kinetics. हम लोगों ने किया था. It is a branch of physical chemistry which deals with the study of rate of reaction, factor affecting rate of reaction और mechanism. तो rate of reaction मैंने आपको बताया था. Rate मतलब speed या तो velocity. It is the short question which is asked in the viva. और एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है बोर्ड में, एग्जाम बोर्ड पेपर में. 3 डिफाइन लिखा था मैंने आपको. युवा दे 3 डिफाइन लिखा है, पता है ना सबको कि नहीं पता है? साई ठाकुर मैम, आप थे लास्ट लेक्चर में? You were there in the last lecture? No, sir. I was absent. Okay. कहीं गए होगे मैम? No, sir. There was a connectivity issue. Okay. अब अपना बुक देख रहे हैं. निश्मिता मैम, मैम व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? Sir, can I see and tell? या मैम, मुझे पता है, ऐसे तो नहीं पता होगा, आप देख के बोल सकते.
The point at which concentration of reactant meets to the concentration of product is known as chemical equilibrium. What is rate of reaction? Rate of reaction. Yes, ma'am. Rate of reaction is defined as the change of concentration of reactant and change in concentration of product with respect to time. Only one definition I have given you. I have given the 3 definition, I think so. No, sir. Only one. जानवी Only मैम one. मैंने सिर्फ एक ही डिफाइन दिया था या 3 दिए थे? सर 3 दिए। हाँ 3 दिए थे मैम, आपने लिखे नहीं है मैम। हर्ष मेरे दोस्त, सर 1 डिफाइन था कि 3 डिफाइन था? 3 था सर। बोलना बेटा, एक मैम ने बोला है, एक आप बोल दीजिए। चेंज इन रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन गलत बोल रहे सर। शशांक बेटा, define first define of rate of reaction. Decrease in concentration of reaction with respect to time. Please be little audible. थोड़ा सा आवाज बढ़ाइए ना सर। Decrease in concentration of reaction with respect to time. Decrease in concentration of reactant. Reaction नहीं, reactant. Reaction लिखा है तो change कर लीजिए सर। Okay sir, thank you. है ना? ठीक है, आगे चालू कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं अपना वीडियो स्पॉटलाइट करता हूँ। स्टूडेंट बोल रहे सर वीडियो स्पॉटलाइट कर लीजिए। वीडियो स्पॉटलाइट हुआ क्या? प्लीज देख लीजिए आप लोग। स्पॉटलाइट है वीडियो मेरा? अरे हाँ या ना करो। Yes, sir. Yes, मुझे- sir. Yes, sir. Yes, sir. ध्यान देना, there are total 6 derivation in the chemical kinetics और कोई एक आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। कौन सा पूछा जाएगा वो मुझे नहीं मालूम, पूछा जाएगा ये मुझे मालूम है। Every year one derivation is there from the chemical kinetics in the board paper. ध्यान देना। पहले मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम फैक्टर कराया था, तो फैक्टर वो 3 चीजें हैं, वो 3 चीजें मैं बता देता हूँ। प्लीज आप factor affecting rate of reaction. रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको बता दिया था, ध्यान से देखना। फैक्टर अफेक्टिंग कम से कम कॉन्सेंट्रेशन। सर 1 मिनट मैम, 1 मिनट नहीं दिखेगा तो मैं कर देता हूँ। कैसे नहीं दिख रहा है? अब दिखा मैम? ये जूम करो थोड़ा। Sir, zoom it. say it Or is very use- light. Sir, zoom it or use black pen. Okay, yeah. 1 मिनट मैम, 1 मिनट। अब दिख रहा है सबको? Is it visible to everyone? Yes, sir. प्लीज ध्यान से देखना। जब कोई इंसान तरक्की पे पहुंचता है ना, तो उससे जलने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन से भी जलने वाले कुछ लोग हैं। कौन कौन है? कॉन्सेंट्रेशन है, कैटलिस्ट है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट और टेम्परेचर है। ये 4 जन है। प्लीज लेट एंटर मत करो कोई भी, प्लीज। चारों के चारों ध्यान से सुनना। खाली टेम्परेचर का है जो इस साल नीट में पूछा गया है। प्लीज हैव अ लुक। श्रुति मैम कुछ लिखो मत,
I will give you ample of time to write. Please don't write. सब के सब मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अगर किसी ने पूछा कॉन्सेंट्रेशन, तो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. मतलब कॉन्सेंट्रेशन अच्छा रहा तो प्रोडक्ट बनेगा, अगर खराब रहा तो भी बनेगा, लेकिन टाइम ज्यादा लेगा, बनेगा तो ही. ठीक है. कैटलिस्ट, कैटलिस्ट द थिंग इज दैट अगर मुझे यहाँ से स्टेशन से घर से स्टेशन जाना है, ठीक है, तो मैं पैदल जा सकता हूँ, लेकिन अगर कैटलिस्ट यूज करूँ मतलब बाइक कार कुछ भी, तो कैटलिस्ट हो गया. तो दोनों ही स्टेशन पहुंचा रहे. द थिंग इज दैट कैटलिस्ट यूज किया तो मेरा टाइम कम हो गया, मतलब मैं जल्दी पहुंच गया डेस्टिनेशन पे. थर्ड आता है नेचर ऑफ रिएक्टेंट. नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब रिएक्टेंट मेरा कम तो प्रोडक्ट कम, रिएक्टेंट मेरा ज्यादा तो प्रोडक्ट ज्यादा. टेम्परेचर की बातें ध्यान से सुनना. टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड पॉइंट है, अगर मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा, इफ द टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी डबल. ये इस साल का जेईई मेंस का क्वेश्चन है. अगर मेरा टेम्परेचर 10 डिग्री से बढ़ा तो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा. और इसको किसने दिया था पता है आप लोगों को? इसको दिया था अरेनियस ने. इट इज नॉट गिवन इन योर बुक, आई एम राइटिंग फॉर यू. प्लीज हैव अ लुक. लास्ट पॉइंट लिख रहा हूं. इफ temperature increases by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. Second point है, और third point है, it was given by Arrhenius. It was given by Arrhenius. समझा आपको चारों पॉइंट? वापस बोलूं, जब तक नहीं आएगा तब तक पूछते रहो मेरे से, मैं लिखूंगा नहीं ज्यादा. Sir, repeat. हाँ वापस बोलता हूँ. सबके अंदर एक पॉइंट ये है, एग्जाम में आप फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कौन से, तो अगर आपने ये चारों लिख दिए खाली सब टाइटल, तो उसके बाद सबके अंदर आपको खाली इतना लिखना है, कॉन्सेंट्रेशन आया तो कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. अगर कैटलिस्ट है तो कैटलिस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. अगर नेचर ऑफ रिएक्टेंट है देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. लास्ट, टेम्परेचर इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन. सेकंड पॉइंट है, if temperature increases by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. Third point है, it was given by Arrhenius. Temperature again. ठीक है. प्लीज ये पहले लिख लीजिए, फिर मैं डेरिवेशन चालू करूंगा. प्लीज राइट दिस पार्ट. Sir, repeat. Which one मैम? कौन सा पार्ट किया आपको रिपीट में? Sir, all the points. सबके अंदर मैम एक ही पॉइंट है, all are directly proportional to rate of reaction. Only the last temperature has a 3 point. It directly proportional to rate of reaction. Second point is if temperature increases by 10 degrees Celsius, then the rate of reaction will be double. The third point is it was given by Arrhenius. Sir, just say a little bit slower. You're going a little fast. Okay. From the next time I will don't go fast. सर फर्स्ट टाइम ये क्या लिखा आपने? What happened? फर्स्ट क्या लिखा आपने? फर्स्ट पॉइंट Concentration. Sir, we have to write the statement also. Yes, you have to write the statement. Means of concentration. Yes, if concentration is there, then you have to write concentration is directly proportional to rate of reaction. सर थर्ड पॉइंट क्या है? Third point, nature of reactant. सर फर्स्ट पॉइंट में सेंटेंस क्या लिखने का है वो रिपीट करो ना. Concentration is directly proportional to rate of reaction. What is statement for catalyst? All are the same point, bro. Catalyst is directly proportional to rate of reaction. Every point is directly proportional to rate of reaction. Only the temperature contains the 3 points. Directly proportional to Rate of reaction.
Done, sir. So Done can you everyone? repeat the Or is there second point someone of who's still writing? temperature? So second Temperature point of directly proportional. temperature. 1 minute, sir. Temperature is directly proportional to rate of reaction. Second point is, if temperature increases by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. And it was given by Arrhenius. Sir, please go slow. Yes, madam. I'm not running. Done, sir. Okay. Is there anyone who is still writing? Pallavi ma'am, Yes, हो गया sir. आपका या आप लिख रहे हैं मैम? हो गया, sir. Okay. Bhaumik. Sir, just say the last point again now. It was Sir, given last by one is Arrhenius. Anamika Bind ma'am. Done, ma'am? Done, Yes, sir. sir. Done. Sir, can't see the temperature second point clearly. Can you just read it? Yes, ma'am. If temperature increases by 10 degrees Celsius, then rate of reaction will be double. Okay. Done. Nice. प्लीज लेट मत एंटर करो कोई भी हो, ध्यान से देखना। डेरिवेशन चालू करो। फर्स्ट डेरिवेशन आप एक बार पूछो, 2 बार पूछो, 10 बार पूछो, 100 बार पूछो, मैं 100 बार तक डिराइव कर दूंगा ये चीज। लेकिन आप बोलोगे सर इसको यहीं पे रहने दो, मुझे कॉपी करना है, तो वो मैं नहीं करूंगा, वो मैं पहले भी नहीं किया हूँ। यू हैव द फ्रेंड ऑफ द विनर फ्रॉम द लास्ट ईयर, यू कैन आस्क देम कि शुक्ला सर ऐसा करते हैं क्या, हम लोग खुद बोलेंगे हाँ सर। ठीक है, चालू करूँ। सिंपल है डेरिवेशन, आप टेंशन मत लेना, खाली थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्योंकि आप लोगों ने अभी तो पढ़ने का दिमाग यहाँ पे तो भूसा भर चुका है, यहाँ पे तो कुछ पढ़ने को बोला ही नहीं था, ये थोड़ा जाम हो गया है, तो उसको थोड़ा ओपन करेंगे। ठीक है, प्लीज हैव अ लुक। रेट लॉ है, छोटा सा डेरिवेशन है, उस छोटे से डेरिवेशन के लिए आपको 3 मार्क नहीं मिलेगा, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया है पार्ट में, ताकि इसको अच्छे से आपको मार्क्स मिल सके। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। चालू करूं? कैन आई स्टार्ट? Yes, sir. Yes, Yes, sir. है ना? दिख रहा है आप लोगों को? रेट लॉ लिखा है, उसके अंदर मैंने 3 पार्ट में कंसीडर कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया है। इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये डेरिवेशन है पूरा। कैन आई स्टार्ट? दिखा इतना? Yes, sir. sir. प्लीज चिंतु चोरी मत करना, प्लीज लिखने की कोशिश मत करना। अगर आप लिखोगे तो आपके बुक में ही जाएगा, तो वो मत करो। ध्यान दे तो थोड़ा सा शायद से आ जाएगा। इंट्रोडक्शन है, इट गिव्स रिलेशन बिटवीन, इसके बीच में ध्यान से देखना, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये दोनों के बीच में रिलेशन दे रहा है। मैंने अभी तक ये नहीं बोला क्या रिलेशन दिया है, ठीक है? प्लीज ध्यान देना, मैंने क्या बोला, ये दोनों के बीच में रिलेशन दे रहा है, या तो एक लड़का और एक लड़की के बीच रिलेशन दे रहे हैं, या तो भाई बहन हो सकते हैं, या तो चाचा पिती हो सकते हैं, या तो मम्मी पापा हो सकते हैं, या तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी तक मैंने ये नहीं पता कि क्या है ये दोनों, मैंने खाली ये बोला इट गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जाऊं आगे स्टेटमेंट में, इतना समझा आप लोगों को? Yes. Yes, sir. स्टेटमेंट है, हाँ स्टेटमेंट है। अब ध्यान दे सुना, अब मैं रिलेशन बता रहा हूँ। इट स्टेट्स दैट rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power. Rate of reaction is directly proportional to rate of reaction with appropriate power. ये रिलेशन स्टेटमेंट में मैंने बता दिया। अब आ रहा है मेरा डेरिवेशन। कैन आई स्टार्ट विद द डेरिवेशन? Sir, repeat the statement. Statement है, it states that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power. प्लीज ध्यान से देखना, इसको जूम हटा देता हूँ थोड़ा सा, अब अच्छे से दिखाई देगा आपको। प्लीज हैव अ लुक। कोई भी डेरिवेशन हो, चाहे फिजिक्स का हो चाहे केमिस्ट्री का, हम लोग एक झूठा लाइन लिखते हैं ना, एवरी डेरिवेशन है था 4 लाइन। कंसीडर अ जनरल रिएक्शन, ध्यान से देखिए,
A of A plus B of B gives C of C plus D of D. तो इसके अंदर A और B क्या है मेरे? What are A and B? Anyone? You can try. कोई ट्राई कर सकता है? A और B क्या है मेरे? Reactant. नहीं, reactant नहीं है. Please have a look. Moles of reactant. तो C और D क्या हो जाएंगे तेरे? What are C and D? Moles of product. Very nice. Moles of product. Then what are A and B? What are A and B? Reactant. Very nice. Reactant. So C और D क्या है मेरे? Product. Product. अब according to rate law क्या बोलता है? Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power. With appropriate power. तो A और B लगा दिया मैंने उसका पावर पे. अब ध्यान से देखना, डायरेक्टली साइन हटा रहा हूं. Therefore rate of reaction is equal to K. A of A और B of B. What is K? Anyone? What is K? K is equal to Constant of rate. Constant. very nice. K is rate constant, not constant, rate constant. अब K को डिफाइन भी करना पड़ेगा. ध्यान से देखना K को डिफाइन कैसे करता हूं मैं. सिंपल है, यहाँ पे जो लिखा है वही डिफाइन करना है और कुछ नहीं करना है. It is defined as constant. किसका constant? Concentration of reactant का. It is defined as constant of concentration of reactant in which rate of reaction is same or unity. Which rate of reaction is same or unity? आएगा या वापस? Sir, repeat once. Repeat one. आएगा या वापस करूं? So mathematically. Sir, वापस करो. वापस. The definition. बोला था आपको मिटा दूंगा यहाँ से. तो प्लीज जो जिससे भी चिंदी चोरी की ना खाली लिखने के टाइम पे खाली लिखा है कॉपी करके जब मैं बोल रहा था तो उनके इधर नहीं किया रहेगा. तो प्लीज वो काम मत करो, आएगा आपको वापस. प्लीज ध्यान देना यहाँ पे. इंट्रोडक्शन में था और जो उन्होंने ध्यान दिया है उनको थोड़ा बहुत अच्छे से आ रहेगा. 50% अब आ जाएगा. अरे मैडम किसके पीछे बच्चा रो रहा है? प्लीज वो अपना बच्चा अपना थोड़ा साइड में रखो. इंट्रोडक्शन में प्लीज हैव अ लुक. आपको पता था इंट्रोडक्शन में रिलेशन देगा. इट गिव्स रिलेशन बिटवीन. किसके पीछे रिलेशन दे रहा है? Rate of Rate of reaction and concentration of reactant. reactant. Very nice. Statement में रहेगा it states that rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant. आगे Appropriate power. With an appropriate power. with appropriate power. Okay, nice. अब मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक झूठा लाइन. क्या झूठा लाइन है? Consider it's a Consider general as- reaction. Consider general reaction. A of A plus B of B gives C of C plus D of D. ठीक है? In which A and B are what? What are small a and small b? Moles of Mole of Moles of reactant. product. Reactant. Reactant. Moles of reactant. Product नहीं है वो, reactant है. तो C और D क्या हो जाएंगे मेरे? moles of product. Product. Then what are A and B? Reactant. Reactant. C and D. Product. तो according to किसके हिसाब से? According to Rate law. Rate law. Rate law. Rate law. क्या बोलता है rate law? Rate of reaction of reaction. directly proportional to concentration of reactant Concentration. With appropriate power. A Reactant. and B. appropriate Yeah. power. Appropriate of power. Therefore, rate of reaction is equal to K. A of A और B of B of B. B. K का मतलब क्या? कैटरीना कैफ. Constant. Constant. Rate Rate constant. Rate. अब ध्यान से सुनना. डिफाइन है, डेफिनेशन. आपको अगर डिफाइन नहीं आया चलेगा, मैं बाद में वापस बोल दूंगा. Sir, write the definition upper the upside now. सर नीचे दिख नहीं रहा है. दोस्त मेरे, भाई मेरे, जो भी हो आप मेरे, मैं डिफाइन लिखूंगा ही नहीं.
तो आप ऊपर बोलोगे Okay, लिखने okay. तो भी मैं नहीं लिखूंगा। Okay. ठीक है सर, डिफाइन है, प्लीज हैव अ लुक, क्योंकि So I thought you were आप यहाँ writing. पे पढ़ने आए हैं, वीडियो लेक्चर देके खाली अपना बुक भरने नहीं आए हो। तो प्लीज वो काम मत करो, क्योंकि आपको सारे वीडियो लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, तो आप वो काम मत करो। आपको अगर यूनिक चाहिए तो थोड़ा पढ़ो, ध्यान से, अच्छा आएगा। डिफाइन है, it is constant of concentration of reactant in which rate of reaction is same or unity। जाने दो, मैं लास्ट में वापस रिपीट कर दूंगा। मैं उनके लिए डेरिवेशन ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, मैं आप लोग पे भरोसा करके करता हूँ कि आप लोग कॉपी नहीं करोगे। ठीक है, अगर आप कहीं पे मिस हो जाओ तब आप यहाँ पे बोर्ड पे देख लेंगे, चलेगा ना? ठीक है, प्लीज रेट लो है, नेक्स्ट पेज पे लिखना और एक ही पेज पे आना चाहिए पूरा। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूँ प्लीज कि आप लोग कॉपी नहीं करोगे पूरा, बाकी आपके ऊपर है। Done everyone? Can I start with the next part? No, sir, wait. Okay, okay, I'm back. बहुत सारे अच्छे बच्चे जो बिना देखे लिख रहे हैं और कुछ हैं जो देख रहे हैं। Yes, sir. Very nice. Sir, sir, Yes, yes. sir, I have written the upper part till statement. I have written full, but I am not getting the mathematical expression. Can you explain it again? I can, bro, but please copy this first. Okay.
Done, everyone? Sir, wait. Okay, I'm waiting. So can you repeat define? Sir, after according to rate law, sir, Yes. Done, na? sir, Almost. जिनका बाकी रहेगा एक दो जन का. According to rate law, rate of reaction is directly proportional to the concentration of reactant with appropriate power. ये आपका statement था, इसलिए मैंने वहां से लाया. अब डायरेक्टली साइन हटा के Yes, मैंने sir, के लगा sir. दिया, ये मतलब रेट कौन है? यस मैम, अब आप बोलिए क्या चाहिए आपको? सर वो वाला जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट में लिखना है कि वी हैव टू गिव द साइन, वो वाला सेम एज इट इज लिखना है? एज इट इज ओनली मैम, क्योंकि यहाँ पे आपके साइन का सब नाम लिखा हुआ है ऊपर. ओके ओके. अब यहाँ पे मेरे को अब सच बताओ कितने बच्चों ने बिना देखे लिखा है? इज देयर एनीवन? Sir, I have written half. I told I have not understood the math. ठीक है, Sir, अच्छी बात है. देखे- इन्होंने लिखा है नहीं लिखा है? कितने जन ने थोड़ा सा देखा और बाकी पूरा लिखा है? अंसारी मैम, अंसारी इकरा देख के लिखा है मैम या ऐसे ही? सर बिना देखे सिर्फ लास्ट लाइन देखी थी. ओके. मोनालिका मैम देखा या नहीं देखा है मैम? वाओ, हर्ष ने, जन्नत ने, बहुत जन है यहाँ पे जिन्होंने बिना देखे लिखा है. वेरी नाइस. मैं भी देख रहा था कि बहुत जन बिना देखे लिख रहे, खाली कुछ लोग हैं थोड़ा थोड़ा देख रहे थे बीच में बस. ओके, डिफाइन बोल रहा हूँ, प्लीज हैव अ लुक लास्ट पार्ट ऑफ द डिफाइन. भक्ति मैम देख के लिखा है या विदाउट? सर लास्ट वाला देखा. अच्छी बात है मैडम, बिना देखे लिखते तो आप मेरी जगह पे आ जाते हैं, टेंशन नहीं लेने का. डिफाइन है, प्लीज हैव अ लुक. फिर मैं बोल रहा हूँ डिफाइन आप मेरे से एक बार पूछो या 100 बार पूछो, मैं लिखूंगा नहीं वहां पे. चालू करो बोलना. Yes, sir. जय माता दी. Sir, ये क्या होता है? इट इज कांस्टेंट. ध्यान देना, इट इज कांस्टेंट. किसका कांस्टेंट है ये? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. इट इज कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच rate of reaction is same or unity. In which rate of reaction is same or unity. आएगा या वापस? Sir, Repeat repeat. one. sir, एक बार करो ना. आएगा. कितनी बार चाहिए उतनी बार, ये मत बोलो सर एक बार ना 2 बार. हाँ या ना, चाहिए या नहीं चाहिए? सही Yeah, है. sir. रिपीट चाहिए सर. हाँ बस, प्लीज कोई लिखना मत, ध्यान से सुन लो. टाइम मैं आपको बहुत देता हूँ. इट इज कांस्टेंट. किसका कांस्टेंट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. इट इज कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम और यूनिटी. अब आएगा जब वापस चाहिए. Yes, sir. Repeat. सर वापस. वापस लो, वापस. इट इज कांस्टेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज सेम और यूनिटी. अब आएगा. यस सर. Repeat. Repeat. It is constant of concentration of reactant in which rate of reaction is same or unity. अब आएगा सर. Go slowly. Yes, thank you, sir. सर गो स्लोली ना. गो स्लोली ना मैडम, मैं कौन सा भाग रहा हूँ, मैं तो धीरे धीरे ही बोल रहा हूँ. प्लीज ध्यान से सुनना, एक बार और बोल देता हूँ उनके लिए जो बोल रहे स्लो. इट इज कांस्टेंट. इसका concentration of reactant in which rate
of reaction is same or unity. ठीक है, प्लीज अब कर लीजिए, अब इससे स्लो नहीं हो सकता मैं. प्लीज राइट दिस पार्ट. हो गया लिख के? Yes, sir. Done. वेरी नाइस. अमृता मैम, माता जी. Yes, sir. Done. डन ना? नाइस मैम. निकिता गुप्ता मैम, डन मैम? Yes, sir. वेरी नाइस. आया सबको? चालू करो आगे. कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट? Yes, Yes, sir. Asleen. Asleen. How can I pronounce it, bro? मेरे दोस्त. Aslin, sir. Asleen. Okay. वो ना, oh my Lord Jesus Christ. Very nice. Sir, समझा आपको? Okay. Please ध्यान से देखना अभी. Next part है. Please have a look, everyone. Order of reaction. First order reaction. Second order reaction. And zero order reaction. दिख रहा है चारों? नहीं सर, ब्लर. दिख रहा है? Yes. Yes, sir. दिख रहा है. हाँ, थैंक यू. चारों का चारों एक साथ कर रहा हूँ. एकदम छोटा छोटा, ये कुछ नहीं है. आपको खाली डिफाइन था, लेकिन डिफाइन कैसे आया ये आपको नहीं पता. इट इज नॉट गिवन इन द बुक. ध्यान से देखना, छोटा सा डेरिवेशन ड्राइव करके मैंने आपको बता दिया कैसे क्या है डिफाइन, और डिफाइन कैसे क्यों बोलते हैं. प्लीज हैव अ लुक. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर और जीरो ऑर्डर है. ठीक है, प्लीज हैव अ लुक. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मतलब एक जनरल डेरिवेशन है, फिर मेरा फर्स्ट ऑर्डर, तो इसके लिए जनरल डेरिवेशन नहीं दूंगा मैं, इसलिए एग्जांपल लेके करूंगा. जनरल डेरिवेशन है. प्लीज हैव अ लुक. कंसीडर अ जनरल रिएक्शन. आपको पता है A of A प्लस B of B क्या देगा मुझे? C of C प्लस D of D. अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? रेट लॉ. क्या बोलता है रेट लॉ? आप लोगों को पता है? बोलो, रेट लॉ क्या बोलता है? Rate of reaction is Rate directly of reaction proportional is to directly the proportional to the rate of reactant. Concentration of reactant with appropriate power. यही है ना? और जब पावर ना दिए तो आपको पता है कितना होता है ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा. हाँ या ना? तो हाँ. ये 1 और 1 अगर मैं ऐड करूं तो कितना हो जाएगा? 2. डिफाइन है, ध्यान से सुनना. चारों डिफाइन एक साथ लिखूंगा मैं और ना ही बोलूंगा मैं. प्लीज ये जो 2 आया है इसी को डिफाइन करना है. इट इज, ध्यान से सुनना, इट इज क्या किया मैंने? सम. इट इज सम ऑफ किसका? पावर ऑफ किसका? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का. इट इज सम ऑफ पावर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन. जाओ आगे, जाओ आगे वाले डेरिवेशन पे. आप टेंशन मत लो, मैं वापस डेरिवेशन बोलूंगा आप लोग को, डिफाइन बोलूंगा आपको, उसका टेंशन मत लो.
जाओ आगे इस पे फर्स्ट ऑर्डर पे, Yes. प्लीज ध्यान देना, फर्स्ट ऑर्डर है तो अब मैं ये कंसिडर जनरल रिएक्शन नहीं दूंगा, ध्यान से देखना। CaCO3 gives CaO plus CO2। तो अब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्या बोलता है रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद एप्रोप्रिएट पावर, पावर है नहीं मतलब 1, मतलब 1। तो डिफाइन क्या आएगा, द केमिकल रिएक्शन इन विच, ध्यान से सुनना, द केमिकल रिएक्शन इन विच rate of reaction is directly proportional to single reactant. The chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to single reactant, then reaction is said to be first order reaction. Then reaction is said to be first order reaction. जाओ सेकंड वाले पे, जैसा फर्स्ट है डिफाइन एकदम First सेम है। order. हाँ बोलो, कौन बोल रहा है, बोलिए मैम। So repeat that first order reaction. मैडम आप चारों डिफाइन में वापस रिपीट करूंगा, आप उसका टेंशन मत लो, समझना जरूरी है अपने लिए। ध्यान से सुना, आपके लिए वापस बोल देता हूं, द केमिकल रिएक्शन इन विच, द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिंगल रिएक्टेंट। अगर एक रिएक्टेंट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो उसको फर्स्ट ऑर्डर, जा रहा हूं सेकंड ऑर्डर पे एकदम सेम है इसकी तरह, प्लीज हैव अ लुक। Fe plus S gives FeS। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से, क्या बोलता है रेट लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब Fe और S विद एप्रोप्रिएट पावर 1 + 1 कितना हो गया 2। तो डिफाइन क्या आएगा, सेम ऐसे ही जो फर्स्ट ऑर्डर का लिखा है आपने, द केमिकल रिएक्शन इन विच रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 रिएक्टेंट, then reaction is said to be second order reaction। अब जाओ जीरो ऑर्डर पे। Yes, sir. जीरो ऑर्डर का ध्यान से लिखना, ग्रीन मार्कर तो दिखेगा नहीं यहाँ पे, तो मैं ये कर रहा हूँ 3H2 जो गैस में है मेरा, N2 के साथ जो गैस में है मेरा, मुझे देगा 2NH3 अमोनिया जो गैस में है मेरा। तो अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ के हिसाब से, क्या बोलता है रेट लॉ, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant H2 और N2 with appropriate power, यहाँ पे 3 यहाँ पे 1। अब ध्यान से सुनना, according to zero order डिफाइन है, ये जितने भी टर्म थे मेरे किस में थे, गैस में थे ना, हाँ या ना, गैसेस वाले टर्म आपको आंख से दिखाई देते हैं क्या, No. नहीं No. दिखाई देते। जो चीज नहीं दिखाई देगी हम उसका ऑर्डर नहीं निकाल पाएंगे, सिंपल सी बात है ना, हम लोग को जो दिखाई देगा हम उसको बता सकते हैं कि इंसान है कि क्या है। अब जो नहीं दिखाई दे सकते वो उसको अपन इमेजिन करके बोल सकते हैं कि ये भूत है कि चुड़ैल है कि डायन है, जो भी हो XYZ, ठीक है। जो दिख रहा है हम लोग वो बता सकते हैं, जो नहीं दिख रहा है वो इमेजिनेशन में। तो ये आपको दिख नहीं रहे हैं, तो अब जीरो ऑर्डर क्या बोलता है, इट इज इंडिपेंडेंट, इट इज independent or does not depend on concentration of reactant is said to be zero order reaction। It is independent or does not depend on concentration of reactant is said to be zero order reaction। हो गया चारों डिफाइन मेरा, आएगा या चारों डिफाइन वापस बोलूं, Sir, repeat. रिपीट रिपीट, चलो ठीक है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ध्यान से सुनना, इट इज सम ऑफ किसका, पावर ऑफ किसका, concentration of reactant, it is sum of power of concentration of reactant in rate law expression, in rate law expression। मैडम लिखना नहीं है, अब वो चालू करेंगे इधर, प्लीज वो चिंदी चोरी मत करो, कोई भी हो। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जो ध्यान से देख रहे हैं ना उनको अच्छे से आएगा। फर्स्ट ऑर्डर है, द केमिकल रिएक्शन इन विच rate of reaction is directly proportional to single reactant, then reaction is said to be first order reaction। तो second order तो एकदम सेम है, the chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to two reactant, then reaction is said to be second order reaction। तो zero order क्या है मेरा, it is independent, I मतलब इलियाना डिक्रूज नहीं है, I मतलब independent है,
it is independent or does not depend on concentration of reactant is said to be zero order reaction. ठीक है, प्लीज ये अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, खाली डिफाइन छोड़ा क्योंकि डिफाइन आपको आ रहा है. प्लीज राइट दिस पार्ट एवरीवन. एक पेज पे दो, सेकंड पेज पे दो, तो आपका नोट्स भी अच्छा दिखाई देगा. प्लीज यूज डिफरेंट कलरफुल पेन ताकि आपका नोट्स और प्रेजेंटेबल दिखाई दे. सी ठाकुर मैम, ओ समुंदर ठाकुर मैम, समझा मैम आपको? साई साई ठाकुर. Yes, sir. ओके. Yes, sir. स्वरा पाटिल मैम, अंडरस्टूड मैम? Yes, sir. थैंक यू मैम. प्रथम मेरे दोस्त फर्स्ट. यस सर. भाई मेरे पहला वाला डेरिवेशन भी समझा था? हाँ सर. नहीं. कॉपी किया था कुछ या बिना कॉपी किए लिखा था? सर लास्ट वाला देखा था. अच्छी बात है सर. नाइस. लाया सेड्रेल. Yes, sir. मैम अंडरस्टूड मैम? Yes, sir. ओके मैम. Sir, यस. sir, सब में consider a general reaction लिखना है. नहीं मैम, खाली एक में ही है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में, बाकी तीन में नहीं है मैम कंसीडर. Okay, sir. आप डेरिवेशन कॉपी कर सकते हैं मैम, खाली डिफाइन आपको लिखना अपने मन से. अब इतना सब नहीं लिखो, ऐसा इतना भी बुरा नहीं मैम. Zoom the screen to blur. Okay. जूम करूंगा मैम, प्लीज वेट थोड़ा सा. दिशा मैम अब दिख रहा है मैम? ओके, थैंक यू मैम. और प्लीज अगर किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे टाइप करके मत बोलो, आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं मैम. कितने जन का टाइप करके आ रहा है, मैं उनको रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ. जो अनम्यूट करके बोल दीजिए ना, तो प्रॉब्लम सबके लिए है. डन एवरीवन? हो गया? No, sir. No, sir. ओके.
अब हो गया या बाकी है? Is there anyone who is still writing? Please tell. Done, sir. कोई लिख रहा है? No, sir. Done. One minute, sir. Okay, I'm waiting for a minute. Last minute for the people who are writing, huh? Please write it fast. सर एक बार लास्ट वाला बोलिए ना. It is independent or does not depend on concentration of reactant is said to be zero order reaction. Sir, repeat the first order reaction once again. It is first order, the chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to single reactant. And Kush, make that pull out game weak. Yeah, you feeling with some wet and Kush. Bring a bucket and a mop. Oh, Lana दीदी, Give me everything you got. Lana मैडम, आप अपना अंग्रेजी सॉन्ग अपने पास ही रखो. Extra charge, extra large and extra hard. Put this cookie right in. उनको निकालना ही अच्छा था. लाना मैडम ने तो अपना अंग्रेजी सॉन्ग चालू करके एकदम छोड़ के चली गई. कोई अच्छा सॉन्ग चालू किया होता है इमरान हाशमी का किसी का तो अच्छा आपको सब सुनते हैं. Sir, first वाला definition dictate करो ना. Sir, can Now you can I start with the repeat next the derivation? definition, please? कौन सा डिफाइन चाहिए मैम? यस सर, किसको कौन सा डिफाइन चाहिए? First, second, third. Yeah, sir, the full of. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर? Sir, Sir, चारों. all. Second order of reaction. Sir, all. हाँ मालूम है ऑल, मतलब जो फोकट में मिल रहा है सब ले लो. ठीक, दे रहा हूँ. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ध्यान से सुनना, प्लीज लिखना मत कोई भी. ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जिनका हो गया अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ है आप उसी डिफाइन पे ध्यान दो जो आपका बाकी रह गया है. ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ concentration of reactant in rate law expression. Second, the chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to single reactant. Second, the chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to two reactant. Last, it is independent or does not depend on concentration of reactant is said to be zero order reaction. श्रुति मैम थोड़ा सुन लेते, आराम से लिखना ही था आपने को. अब लिख लो प्लीज. Sir, repeat order of reaction once. It is sum of power of concentration of reactant in rate law expression. चालू करो नेक्स्ट डेरिवेशन. Sir, एक बार second का बताओ ना definition. कौन सा चाहिए सर? First order. First order, the chemical reaction in which rate of reaction is directly proportional to single reactant. शशांक हो गया बेटा सब लिख के? Yes, sir. समझा था बेटा? हाँ sir. दिशा मैम, दिशा वेली. Yes, sir. समझा मैम? Yes, sir. स्वरा पाटिल. Yes, sir. क्या यस सर? मैडम मैंने अभी तो कुछ पूछा ही नहीं. You asked for my name, so I was like, yes, sir. Okay ma'am, very intelligent. Okay ma'am, nice ma'am. जानवी मैम, समझा मैम आपको? Yes, sir. ओके. साइली चौहान करके भी है कोई मैम? अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके. नाउ कैन आई स्टार्ट विद द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट डेरिवेशन? Yes. Yes, sir. ओके. शायद से शशांक एक करते ना अपन, फिर बात करेंगे वापस, टेंशन मत ले, आराम से. Sorry, sir. प्लीज ध्यान देना. यहाँ पे कितने बच्चे हैं जो मतलब फर्स्ट लेक्चर से सोच रहे थे कि सेकंड लेक्चर वापस आए मेरा? कोई था क्या?
Me. sir. Yes, बहुत sir. सारे बच्चे होंगे कि वो लेक्चर वापस आए सर, वापस पढ़ने को मिले, ठीक है। अब जो डेरिवेशन करा रहा हूँ ना, दिस सेकंड डेरिवेशन, मैंने आपको क्या बोला, 6 डेरिवेशन है आपके बुक में, कोई एक पूछा ही जाएगा, कंपलसरी है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चन के डिस्ट्रीब्यूशन है वैसे केमिकल काइनेटिक्स का है। ये डेरिवेशन आप अगर बोर्ड का पेपर 10 साल का चेक करोगे ना, तो 8 साल के बोर्ड पेपर में आपको डेरिवेशन मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर वाला। डेरिवेशन बड़ा है, 4 मार्क का है, लेकिन अभी आप लोग का बोर्ड पैटर्न थोड़ा रिड्यूस हुआ है तो इसको 3 मार्क का दिया गया है। आप लोग की किस्मत खराब है, इसलिए आप लोग 12th, अगर पिछले साल होते 12th तो शायद से गवर्नमेंट पास कर देती, आप नहीं पास करेगी, ठीक है। तो एक फेवर और हो सकता है, भगवान से दुआ करो कि ये कोरोना 1.5 साल और रहे, तो आप लोग भी पास हो जाओ आराम से। आया ना? No, sir, we don't want. अच्छा, नो वन ये सब है ना चूरन देने वाली बातें सर, नहीं। जब अच्छे से पास हो जाते हैं तो अच्छा लगता है, हाँ सर पास हो गए बिना काम किए। अरे उन बच्चों को पूछो जो पास हो गए बिना पढ़े, मैथ्स का इंटीग्रेशन डेरिवेशन तो आज तक नहीं समझा उनको, तो सर पास हो गए। सर प्लीज आप पास लोग होना दुआ होगा करो। तो होंगे, बट कोरोना नहीं हाँ चाहिए। चलो अच्छी बात है, चालू कर दे। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसको मैं कितना इंपॉर्टेंट मार्क करूं उतना कम है। मैं जितना ज्यादा इसको इंपॉर्टेंट मार्क करूंगा उतना ज्यादा एक कम है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। चालू करो डेरिवेशन। सर ब्लर है। और ये पेज दोनों का है, प्लीज ध्यान देना, ये साइड और ये साइड दोनों कंप्लीट होगा। ध्यान से दोगे तो पूरा आपको डेरिवेशन समझेगा, अगर आप कॉपी करने के इसमें जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। मैंने आपको बोला है आपको जितनी बार चाहिए उतनी बार मैं डिराइव कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। चालू करूं। ध्यान देना, आपको पता है कोई भी डेरिवेशन चालू करने से पहले एक झूठा लाइन, हाँ या ना, क्या है वो झूठा लाइन? According to general reaction. जनरल रिएक्शन या अकॉर्डिंग टू, जो भी आप बोल सकते हैं, सही है। ए मेरा रिएक्टेंट जो कन्वर्ट होगा किसमें, बी में। अगर स्मॉल ए मेरा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, मतलब जिसके अंदर से कुछ जा रहा है, तो ये मेरा इनिशियल इसके अंदर कुछ जा रहा है। अगर इसके अंदर से कुछ गया तो मतलब ए माइनस एक्स, तो ये ए माइनस एक्स मेरा क्या होगा, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या नहीं पता, रिएक्टेंट। ध्यान देना, स्मॉल ए था जिसके अंदर से कुछ जा रहा था, तो स्मॉल ए मेरा क्या बन जाएगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इसके अंदर से कुछ गया, क्या गया वो मुझे नहीं मालूम, कितना गया वो भी मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ गया है ये मेरे को मालूम है। तो कुछ गया इसलिए मैंने ए माइनस एक्स लिखा है। ए माइनस एक्स मतलब फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आगे चालू करता हूं, प्लीज हैव अ लुक। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, क्या बोलता है रेट लॉ? Rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power. यही है ना डेरिवेशन का डिफाइन रेट लॉ का, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of reactant with appropriate power। चालू करो आगे, ध्यान देना। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? सर बड़ा एक मिनट दोस्त, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए। के क्या है मेरा, एनीवन व्हाट इज के? कराया था मैंने आप लोगों को, रेट कांस्टेंट। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, माइनस डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू के ए। जिसको समझा रहेगा हाँ, जिसको ना समझा रहेगा ना। सर हमको नहीं मालूम क्यों, कैसे लिख सकते हो आप? No. किसी को समझा है ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? Yes, sir. No, sir. No sir. कितने जन को समझा है लिख सकते हैं, प्लीज आप बता देंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। Mass action. कौन बोल रहा है, रिपीट अगेन? अरे अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं। किसी को Mass समझा है मैंने रेट ऑफ action. रिएक्शन कैसे लिखा है मैंने? Mass action. नहीं, चलो ठीक है। मैंने लास्ट सेक्शन में शायद से रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन कराया था,
तो फर्स्ट डिफाइन क्या था मेरा रेट ऑफ रिएक्शन का? देखो जरा क्या था फर्स्ट डिफाइन? Decrease in Decrease in concentration of reactant with respect to time. डिक्रीज मतलब माइनस एंड डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dt। अब समझा आपको ये कहां से आया? ये डिफाइन है रेट ऑफ रिएक्शन का। Yes, sir. डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और जिन्होंने रिएक्टेंट की जगह रिएक्शन लिखा है प्लीज चेंज कर लेना आप लोग, ठीक है? अब ध्यान देना, खाली मैं पलटी मार रहा हूं इसको, प्लीज हम लोग माइनस डी ए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू, नहीं अलग नहीं करता हूं, प्लीज ध्यान से देखना। क्या मैं इसको सेपरेट कर सकता हूं क्या? ध्यान से देखिए, -1 बाय लेकिन ये कराने से पहले मुझे वो स्टेप करना पड़ेगा, कैसे आया ये, ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया? पलटी मार दिया। मैंने आपको बताया था ये स्टेप नहीं था वहां पे, इसलिए मैं आपको ये स्टेप बता रहा हूं। मैं डायरेक्टली साइन कर सकता था, पता चला ये कहां से आया, खाली मैंने पलटी मारा, शिफ्ट किया यहाँ पे। अब ध्यान देना, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूं खाली, -1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए dA इज इक्वल टू k dt। समझा? ये सेपरेट किया मैंने, खाली अलग कर दिया इसको, और कुछ नहीं किया मैंने। यहां तक करेंगे ना तो आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है? अब इसके आगे प्लीज ध्यान से देखना। ऑन इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल लिमिट, ऊपर वाले इक्वेशन को मेरे को इंटीग्रेट करना है, किसके बेसिस पे? इनिशियल और फाइनल लिमिट के बेसिस पे। ध्यान से देखिए, माइनस A0 बाय AT 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ADA इज इक्वल टू, के बाहर ले गया मैंने, 0 टू T dt। आपको अगर ये समझ गया ना तो मेरा डेरिवेशन एकदम सिंपल हो गया। इंटीग्रेट किया मैंने। सर A0 और AT क्या है? अरे इनिशियल और फाइनल, क्योंकि आपको लिखा था इनिशियल और फाइनल, इसलिए इनिशियल A0, फाइनल मतलब AT। चालू करो आगे, एक ये स्टेप और एक इसके बाद वाला स्टेप। ध्यान से सुनना, बाद वाला स्टेप आप लोगों को शायद से लॉग हटा दिया गया एक बार, तो आपको हटा देगा, जिसकी वजह से सेकंड वाला स्टेप नहीं समझेगा। प्लीज ध्यान से देखना। ये मेरा जो है ना, ये मेरा किस फॉर्म में पता है आपको? log 1 बाय x dx के फॉर्म में। log 1 बाय x dx के फॉर्म का फॉर्मूला है log ex। ये किस फॉर्म में मेरा? log 1 बाय x dx। log 1 बाय x dx का फॉर्मूला क्या है मेरा? log ex। आपको मैथ में कराया जाएगा लॉग, आप टेंशन मत लो, फॉर्मूला है log ex। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? माइनस log e a0 टू at इज इक्वल टू k t0 टू t। कर सकता हूं ऐसे? हाँ या ना? कितना समझा आप लोगों को? अरे बोलो सर लास्ट स्टेप बताओ ना एक बार। हाँ, ध्यान से सुनना। ये जो मैंने ऊपर वाला रिएक्शन लिखा था, इसको इंटीग्रेट कर दिया मैंने। लिखा है मैंने यहाँ पे ऑन इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल एंड फाइनल लिमिट। इंटीग्रेट किया तो इस फॉर्म में बन रहा है ये, और ये जो फॉर्मूला है मेरा इस फॉर्म में बन रहा है, ये log 1 बाय x dx के फॉर्म में आ रहा है। तो log 1 बाय x dx के फॉर्म का फॉर्मूला क्या है? log ex। यहाँ पे जहां x था वहां पे यहाँ पे क्या है? a है मेरा, देख लीजिए। तो मैंने क्या लिखा है? log e a0 टू at, क्योंकि इनिशियल और फाइनल लिमिट है मेरा, और यहाँ पे t टाइम को 0 टू t से। अब चालू करो आगे। Yes. हाँ, अब ध्यान देना, इसका मतलब क्या? एनीवन AT और A0 का मतलब क्या होता है, पता है किसी को? Lower limit, upper limit. वेरी नाइस, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लेकिन इसका मतलब होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है आंसर का? थैंक यू, अच्छा लगा मुझे आपने आंसर दिया। प्लीज ध्यान देना, लॉग ब्रैकेट में ले रहा हूं मैं,
log E AT minus log E A0 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू K T minus 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये रहा। समझा आपको इतना? Yes, sir. जाओ आगे, मैं यहाँ पे करता हूँ क्योंकि नीचे दिखाई नहीं देगा। ध्यान से देखना, मैं log A माइनस log B क्या होता है? एनीवन, log A माइनस log B का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज log A माइनस log B? ये तो पढ़ा होगा 10th में, 11th में भी पढ़ा है। शशांक पता है बेटा? नो सर। log A upon log B. log A माइनस log B होता है log A अपॉन log B। log A माइनस log B क्या होता है? log A अपॉन log B। ध्यान से देखना, माइनस log E AT अपॉन A0 इज इक्वल टू KT। समझा ये? log A माइनस log E किया मैंने, log A माइनस log B क्या होता है? log A अपॉन log B। माइनस साइन बाहर है क्योंकि माइनस साइन था वहां पे, इसलिए माइनस साइन बाहर है। अब T माइनस 0 मतलब क्या है? T है, KT। अब ध्यान से देखना, हाँ अब देखा, ये साइन हटाने के लिए है ना, ये माइनस साइन पलटी मार रहा हूँ खाली, इसको पलटी मार दूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा। ये लॉग का फॉर्मूला है, माइनस साइन लगा, आप अगर ऊपर नीचे कर दोगे तो आपका साइन हट जाएगा। तो इसको हो सकता है मेरा log E A0 अपॉन AT इज इक्वल टू KT। समझा इतना? Yes. अब log E का वैल्यू है, प्लीज ध्यान से देखना, log E का वैल्यू है ये वाली log E का। ध्यान से देखना, सिंस log E इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10, ये मेरा फॉर्मूला है log E का। अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूं, ध्यान से देखना मेरा KT क्या बनेगा? KT इज इक्वल टू 2.303 log टू द बेस 10 A0 बाय AT। समझा ये? ठीक है, अब मैं खाली 80 नीचे शिफ्ट कर रहा हूं। अगर आप शिफ्ट नहीं करोगे तो भी आपका डेरिवेशन यहाँ पे खत्म हो गया। शिफ्ट करेंगे तो आपका मार्क्स एग्जामिनर नहीं काटेगा। Therefore मेरा K बनेगा K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log टू द बेस 10 A0 बाय AT। हो गया मेरा डेरिवेशन। समझा आपको? हाँ या ना? Yes, sir. वापस वापस करें? Yes. यस सर। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे वापस कर रहे हैं हम लोग। इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कोई भी डेरिवेशन चालू करने से पहले क्या छोटा लाइन लिखते हैं हम लोग? कंसीडर अ जनरल रिएक्शन। ए मेरा कन्वर्ट होगा किसमें? बी में। अगर स्मॉल ए है, इसके अंदर से कुछ जा रहा है तो मतलब ए माइनस एक्स, तो ये स्मॉल ए क्या है मेरा? इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ए माइनस एक्स मेरा क्या हो जाएगा? फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन। वेरी नाइस, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अकॉर्डिंग टू किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। रेट लॉ। रेट लॉ क्या बोलता है? रेट लॉ, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant with appropriate power। यही है? ठीक है, अब ध्यान देना, डायरेक्टली साइन हटा रहा हूं। therefore rate of reaction is equal to Ka। K का मतलब क्या? what is K? rate constant। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन का डिफाइन है, और डिफाइन के हिसाब से ये आया है। बाकी लोगों को नहीं पता इसलिए वो रट्टा मार लेंगे। आपको मैंने डिफाइन बताया इसलिए मैं लिख रहा हूं। डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ रिएक्शन का डेफिनेशन है इज इक्वल टू Ka। समझा आपको इतना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. अब मैं क्या कर रहा हूं? पलटी मार रहा हूं इस साइड। ध्यान से देखिए, माइनस Ba अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज इक्वल टू KT। सही है इतना? Yes, sir. अब आगे कौन सा स्टेप रहेगा? आगे क्या रहेगा? Integrate.
integrate with respect to. गलत है ना, इंटीग्रेट कहाँ पे? अभी तक मैंने इसको सेपरेट कहाँ किया है? सेपरेट करूंगा तभी तो फॉर्मूला में बनेगा। सेपरेट करूंगा, ध्यान से देखना, 1 बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A dA इज इक्वल टू K dt। ये सेपरेशन हो गया, यहां तक आपको 2 मार्क मिल गया। अब क्या करूंगा? ऑन इंटीग्रेटिंग अबाव इक्वेशन with respect to initial and final limit, ठीक है। अगर मैं क्लासरूम में होता ना, अगर ये डेरिवेशन किसी भी करके दिया तो उसको 500 रुपया दे देता। आप पूछ सकते हैं अपने फ्रेंड लोग को कि शुक्ला सर देते कि नहीं देते, वो खुद बताएंगे। मैंने तो अपना घड़ी भी दे दिया बच्चों को, ठीक है ना। जब ये चालू होगा ऑफलाइन तब हम लोग क्लास में पढ़ेंगे। इससे आगे इंटीग्रेट करना है मुझे, प्लीज ध्यान से देखना। माइनस, repeat this sentence once. on integrating above equation with respect to initial and final limit। अब इंटीग्रेट कर रहा हूं a0 to at 1 by a dA इज इक्वल टू k बाहर 0 to t dt। इंटीग्रेट हो गया, समझा इतना? जाऊं आगे, ठीक है। अब ध्यान देना, ये मेरा किस फॉर्म में है? log e नहीं, log 1 by x dx के फॉर्म में है। तो log 1 by x dx का मतलब होता है log ex। तो अब ध्यान से देखिए, जहां जहां मेरा ये x है वहां वहां ये मेरा a है। तो अब अगर मैं फॉर्मूला में अप्लाई करूं, देखो, माइनस log e a0 to at इज इक्वल टू k t0 to t। समझा इतना? जाओ आगे, इसका मतलब क्या? at और a0 का मतलब क्या? t और 0 का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखना, माइनस ब्रैकेट में रखा है log e at माइनस log e a0 ब्रैकेट बंद इज इक्वल टू k t माइनस 0। बराबर है? हाँ या ना? ठीक है। log a माइनस log b क्या होता है? log a upon log log a upon log b। log a upon log b मतलब माइनस साइन बाहर रखा है मैंने, log e at अपॉन a0 इज इक्वल टू kt। अब ये साइन हटाने के लिए क्या करूं मैं? ये नेगेटिव साइन हटाने के लिए क्या करूं? बताया था मैंने, क्या करना चाहिए? आस्था मैडम बोल रही है ऐसे, सर ऐसे सही है। आस्था मैम पलटी करना है उसको, प्लीज ध्यान से देखना। log e a0 अपॉन at इज इक्वल टू kt। log e का वैल्यू कितना है बताया था मैंने आप लोगों को। सिंस log e होता है मेरा 2.303 log टू द बेस 10। कितना है log e का वैल्यू? 2.303 log टू द बेस 10। ये वैल्यू अगर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ध्यान से देखना, therefore kt is equal to 2.303 log to the base 10 a naught by 80। हाँ या ना? समझा इतना? यहां तक आपने किया, आपका डिवीजन एकदम सही है। लास्ट खाली ये मैं t नीचे शिफ्ट कर रहा हूं बस। therefore k is equal to 2.303 upon t log to the base 10 a naught by 80 हो गया मेरा डेरिवेशन। समझा आप लोगों को? 2 पेज का डेरिवेशन है। आप लोग के टाइम देता हूं, मुझे मालूम है कि इतना जल्दी आप लोग का नहीं हो पाएगा। प्लीज, ये मैडम लाना मैम ये पुदीना पुदीना क्या कर रही है मेरे को पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग को टाइम दे रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। आप लोग 2 मिनट आप पहले देख लो, लिखना बिना देखे। आप जहां पे अटक जाएंगे वो बोर्ड पे ही रहेगा, आप कॉपी कर सकते हैं, लेकिन 2 मिनट आप ऐसे पढ़ के देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद लिखना चालू करो, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़ा दिमाग पे जाएगा, थोड़ा नहीं जाएगा, तो आप देखेंगे तो थोड़ा और आ जाएगा, ठीक है। प्लीज पहले 2 मिनट देख लो, उसके बाद लिखना। Sir, please zoom a screen little bit. यस मैम, आई कैन। थोड़ा सा जूम कर देता हूं, मैम ने बोला है।
कुछ ज्यादा ही नहीं तुम हो गया। मैम इतना दिख रहा है आप लोगों को? हेडिंग छोड़ और के ऊपर का बाकी सब हेडिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। यस। हाँ तो हेडिंग, अरे यार मर गया मैं। अब दिख रहा है मैम? Yes, sir, it's perfect. प्लीज हेडिंग लिखना। सर वो स्टेटमेंट रिपीट करो ना, ऑन On इंटीग्रेटिंग अबाउट। integrating above equation with respect to initial and final limit. सर जानवी बोर्ड के मैम, समझा मैम आपको? जानवी मैम,
अनम्यूट करके Yes, बोलो sir. मैम. Yes, sir. ओके मैम. कैडन मेरे दोस्त, समझा भाई मेरे? Yes, sir. सोनाली मैम, अंडरस्टूड मैम? श्वेता पाटील मैम, समजलं का तुम्हाला? Yes, sir. श्वेता मैडम बोलो, आपका आवाज गूंगे बहरे का रहा, प्लीज बी लिटिल ऑडिबल. Yes, sir. Understood. ओके मैम. इकरा मैम, समझा आपको मैम? अंसारी इकरा. Yes, sir. तेजल अजगावकर मैम, अंडरस्टूड मैम? Yes, sir. महक मैम, समझा आपको? Yes, sir. एस्लिन ब्रो, अंडरस्टूड? Yes, sir. प्लीज ये चैट बॉक्स है ना, आप लोग कुछ भी कर रहे हो आप लोग. पता नहीं कौन लैलन दीदी करके कोई है. प्लीज ये सब फालतू बातें छोड़ो, पढ़ाई पे ध्यान दो थोड़ा. बाकी बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि सर ग्रुप में गलत चैट कर रहे हैं हम लोग. हो गया सबका? इज देयर एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग? या मैं मिटा दूं इसको? कोई लिख रहा Sir, है? wait for a while. हो गया, वेटिंग. Sir, wait, sir. चाय से टाइम हो गया आप लोगों का? हाँ या ना? टाइम इज Yes, ओवर sir. फॉर द लेक्चर इफ आई एम नॉट रॉन्ग. निकिता मैम, सही है कि गलत है? Yes, sir. डन एवरीवन? और स्टिल नीड टाइम टू राइट? Done, sir. Last 2 minutes, sir. ओके मैम, आई एम वेटिंग.
अब हो गया सबका या अभी भी कोई लिख रहा है? Is there anyone who is still writing? Done everyone? Done, sir. Yes, sir. सब लोग अपना पेन नीचे रख लीजिए। रखने के लिए बोला, फेंकने के लिए नहीं बोला, सब पेन फेंक दे रहे हैं। भाई और बहनों मेरे, ब्रदर एंड सिस्टर्स, लिटिल स्मॉल स्मॉल, आज जितना भी पढ़ा समझ में आया क्या सबको? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सिंपल था या हार्ड था? Simple. Simple, sir. Simple. क्योंकि मैं था। Hard. हार्ड बोलो, डिफिकल्ट बोलो, सिंपल बोलो, कुछ भी बोलो, अभी तो हो गया। हाँ, मुझे मालूम है सिंपल था मैम। 2 डेरिवेशन हुए आज। ओके, ठीक है, चलो। अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, अच्छे बच्चे आप लोग। बाय बाय, चलो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर एवरीवन। Thank you, sir. Bye, sir.